So, my name is Harsh, and we are serving a period of lockdown in India. COVID 19 is here, everything is chaotic over here, and we are facing situations that no one have faced in previous generations. And the nationwide lockdown, no railways, nothing. So, it's very hard time for everyone, not just for me, for everyone, for each and everyone. For some of us, it may be even more harder than what what it is for us. Okay, for a family coming from a rich background, it may be not that hard because they have a good saving, which they can survive for next 2 years. So it's fine with them. For a middle class person, we have to find a new opportunities and move on uh, with our lives as soon as possible. We have to find what we can do, how we can innovate and do better. For someone from a lower class, it's really hard. It's really hard. They have to survive on the mercy of government. Okay, on the mercy of people who are above, on the top. Okay, so it's not about the who is up, who is below. At the end of the day, we all are human. Okay, so that would that is something which should matter. So in India, we have seen particular scenario जिसने सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया है. I agree, we have been fighting really nicely with this virus. We are trying to track it down. We are trying to go and fix the problem from the root. We are doing it great. Uh, our Prime Minister Narendra Modi is doing great. Everyone, he's been in contact with everyone. I'm from Delhi, so yeah, our CM Arvind Kejriwal, he's been doing absolutely amazing job. There are some cases जहाँ पे problems होती हैं, but at the end of the day, they are fighting. They have a plan. They are fighting. They are asking us to stay inside, stay at home, be human. Above all, be the human that you are supposed to be. जब मुश्किल वक्त आता है, you are supposed to stand with each other. You are supposed to help each other. You have to show your human side more at this time. You have to help everyone. That doesn't mean that you have to uh, don't think about your own interest and put it on the sideline. You have to definitely put the mask on your face first, but then after that, you have to think about everyone else. What are you doing socially? So personally, I come from a lower middle class family, and we do not have a lot of resources. All right, we cannot help a lot of people, but my father found a way. What he started doing is, he asked the people with whom he is in touch, who needs ration. So he tried to contact people, political parties or the leaders, through Twitter or through other sources that are available to him, and giving them the addresses, आधार, राशन नंबर, कि उनके यहाँ राशन नहीं पहुँचा है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है. So our little bit, whatever we can do, donating some amount of money to the PM Care funds. Okay, uh, although I still argue why it is PM Care, why not India Care, but it doesn't matter. At the end of the day, we are doing our little bit. Things that shock us are also here. Cases like in Punjab, a person जिसने एक कॉप का हाथ काट दिया. Okay. It is disturbing. It is very disturbing. एम्बुलेंस में डॉक्टर्स जा रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं क्वारंटीन में ले जाने के लिए, लोग पत्थर मार रहे हैं. दिस इज़ वेरी बैड. दिल्ली के अंदर जमात के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से एकदम स्काई रॉकेट हो गया सारे नंबर्स, विच इज़
वेरी डिस्टर्बिंग। हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिचुएशन धीरे धीरे मोर एंड मोर क्योटिक होती जा रही है। हाउ? ये जो चीज़ थी जहाँ पे हमें अपनी ह्यूमन साइड दिखानी थी, वहाँ पे हम रिलीजन साइड को आगे करने जा रहे हैं। कई लोग इस बात को सुनते ही, रिलीजन वर्ड को सुनते ही कि ये बंदा हमारे रिलीजन को टारगेट करने वाला है, अपना ये सब बंद कर देते हैं। देयर इज़ अ मेंटल ब्लॉक। हाउ कैन यू टारगेट अवर रिलीजन? बट जस्ट 1 second, remove that mental block and think about it. From here, you're a human being. You're supposed to help other human beings. This is a very hard time for every one of us. Instead of saying कि एक पूरी कम्युनिटी है जो गलत कर रही है, आई नो बहुत सारे लोगों ने गलत किया, उस कम्युनिटी को ख़त्म कर देना। आई मीन सब्ज़ी वालों से ये पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है, आधार कार्ड क्या है, दिखाओ ज़रा एक बार। एंड इफ़ ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, यू वांट टू बीट हिम? यार वो गरीब आदमी है, एक फुटपाथ पे कहीं पे रह रहा है, आई डोंट नो कौन सी कॉलोनी में कहाँ रह रहा है। वो सुबह सुबह उम्मीद से मेहनत करके सब्जियां ला करके निकला है घर से बाहर, इस उम्मीद की कि लोग मेरा मज़हब सोचे बिना मेरे से सब्ज़ी खरीदेंगे जो मैं पूरी ईमानदारी से बेचने आया हूँ, ताकि वो लोग ये सब्ज़ी खरीद करके अपना मेरे को 4 पैसे दे और मैं उससे अपने बच्चों का पेट पालूँ। और पता चलता है रात को जब आप वापस घर पे आता है तो उसका सर फटा हुआ है। दिस इज़ बैड। लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लैग अपने रेडी पे लगाना पड़ रहा है सो दैट उससे बिक्री ज़्यादा हो। पीपल लुक एट द फ्लैग, इट्स नॉट द गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस, इट्स अ सोशल मेंटल ब्लॉक विच टेल्स यू कि हाँ ये फ्लैग है सो इट्स गोइंग टू बी ऑथेंटिक। दिस इज़ रॉन्ग। सो दैट थिंग इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। चलो अभी सिचुएशन धीरे धीरे और क्योटिक होती जा रही है। मतलब यहाँ तक मैंने देखा आई वॉज लाइक डिस्टर्ब, बट ठीक है, मेरी खुद की कॉलोनी में बंदा आता है, उसका आधार मांगते हैं कि दिखा वरना हम तेरे सब्ज़ी नहीं लेंगे। या ऑनेस्टली हम लोग सब्जियाँ ले रहे हैं, बाहर से सामान ले रहे हैं, वी आर वॉशिंग देम प्रॉपरली, वी आर पुटिंग देम ऑन अ क्लॉथ so that they can dry and then we are putting it back, चाहे वो किसी भी मज़हब का बंदा दे रहा हो, because we know किसका हाथ लगे क्या लगे, we don't know exactly this virus maybe is some misconception या क्या है क्या नहीं है, it's not a proven fact, it's whatever, but we are taking our precautions without saying कि इस मज़हब का बंदा क्या हमें सब्ज़ी दे रहा है। मैं बाहर जाता हूँ, सामान लेके आता हूँ, है ना, कुछ लेके आता हूँ, and I come back and I take a shower, okay. So it's not like मैं हर बार I plan it this way, like मैं सुबह सुबह गया, सामान लेके आया, I took my morning shower, okay. So that's how I'm doing. Maybe it's a myth, I'm not doing right, there could be many different perspective of this particular situation, but whatever I believe, I'm just doing what's good for me and my family. I'm trying to protect them, okay, so it's fine. But the point is कि आप अपना प्रिकॉशन लो बेस्ट तरीके से, उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि अगला बंदा कौन से मज़हब का है, क्या वो सब्ज़ी में थूक लगा रहा है और फिर हमें बेच रहा है, क्या उसको कोविड ऑलरेडी हो रखा है। यार ऑनेस्टली किसी ऐसे बंदे को जो फ्लैग लगा रहा है उसको भी हो सकता है, उसको पता भी नहीं होगा, अगले 10 दिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कोविड-19 हो रखा है और वो अपना सामान बेच रहा होगा। तुम उससे लेकर के अपना ट्रस्ट करके करोगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे भी आएगी। दैट डजंट मीन कि यू हैव टू बॉयकॉट अ कम्युनिटी टोटली। कुछ लोगों ने गलत किया है, आई एग्री, बट दैट डजंट मीन कि हम सबको बॉयकॉट करें। एंड आई एम नॉट डिफेंसिंग सम पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली, ठीक है। अभी रिसेंटली
I follow this guy on Instagram. I met him back in 2017. He was a decent person, and he was doing good for national football. So we got connected through Indian football. As you know, 2017 was the year when India hosted the FIFA World Cup over here. So recently, there are many people who are unfollowing him, okay, who are blocking him because he started questioning some issues that are happening in our nation. I won't name him. I accidentally saw something on his account जिसके बारे में आप सबको पता होगा, जो अभी रिसेंटली हुआ है कि एक साधु को मार के, डंडों से मार के उसकी हत्या कर दी गई. He was a son. This guy doesn't belong to that community at all, but he's sad about it because as a human being, it is very disturbing. एक पुलिस वाला लेके आ रहा है. This was just a video that I saw. I'm not sure about the authenticity of that. I'm not sure about that, everything. I'm not gonna discuss the details about that video. But people are beating them. Their mob is doing a lot of things. गरीब आदमी यार बैठा हुआ है, साधु है, कोई भी है, तुम्हें एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा किया है, वैसा किया है, और तुम निकल पड़े अपना लेकर के लाठी और उसको मारना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि हम क्या सही है क्या गलत है, और उसको मार के सर फाड़ कर तो जान से मार दिया. माना चलो हो सकता है कि कोई बंदा हो वो गलत कर रहा हो कि बेटा कम ऑन उसको कानून के हाथ में दो, ठीक है, कि ये बंदा इस तरीके से गलत कर रहा है, तुम आओ हो ना जाके कंप्लेन कर दो उस बंदे के हिसाब से, गरीब क्या से. मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ना एक हैवान हमेशा से होता है जो इस सिचुएशन का वेट कर रहा होता है कि कब मैं जागूं, और जैसी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है वो अंदर से बाहर निकल कर के आता है और उस इंसानियत का गला घोट करके ख़त्म कर देता है. उसका मन करता है कि बस मुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन के अंदर. माई वाइफ टेल्स मी कि वाई डोंट यू क्रैक IAS एंड बी इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड वेयर यू कैन एक्चुअली मेक अ चेंज. मे बी दैट्स द राइट थिंग टू डू. मे बी, जस्ट मे बी, आई एम नॉट श्योर. I'm doing something else. I'm doing my MBA right now, and I'm pursuing my dreams. I'm trying to make a better life for myself. But the point is कि I cannot sit over here by just thinking कि मैंने अपना little bit नहीं दिया. मैं अपनी वीडियोस को जो भी मैंने पहले डाली हैं, क्या डाला है, कुछ डाला है, मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ. I don't do it for anyone. I just do it for myself. And this video is a way to give myself a little bit of satisfaction that I have done something about it. I have expressed my sadness, my thoughts कि हमारी इंसानियत, हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ गर्त में जा रही है, कितनी नीचे गिर रही है. I mean, when I talk to people कि why you're targeting a particular community about this thing, ये लोग बोलते हैं कि कभी सर पे पत्थर खा के देखो तब पता चलेगा. यार देखो, तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करते हो, ठीक है, चाहे तुम गांधी जी को अच्छा मानो, चाहे बुरा मानो, चाहे जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट्स हो, ठीक है, विदाउट जस्ट रिमूविंग द मिडिल ब्लॉक, तुम अच्छे इंसान से भी अच्छी चीज़ सीख सकते हो और बुरे से भी अच्छी चीज़ सीख सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. Gandhi once said, an eye for an eye makes the whole world blind. अब तुम्हें गांधी नहीं पसंद है किसी को तो I cannot help you with that. बट उनकी ये बात उन्होंने गलत नहीं बोली थी कि अगर मतलब क्या है, वो बंदे पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, वो हैवान हैं जो पत्थर मार रहे हैं, तुम भी उसके ऊपर पत्थर मारो, उनको लाठी मारो, ख़त्म कर दो, तो तुम्हें और उस हैवान में फ़र्क क्या रहा? जस्ट टेल मी कि तुम जिसको बुरा बोलते थे, क्या आज तुम वो खुद नहीं बन रहे हो?
लोग कहते हैं कि तुम क्या जानो कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनको क्या फेस करना पड़ा। यार ये जब तक हम उस दर्द में रहेंगे पास्ट में, जब तक हम उससे मूव ऑन नहीं करेंगे, जब तक हम एक नए सवेरे की तरफ नहीं देखेंगे, क्या बात कर रहा हूँ मैं नया सवेरा, आई मीन आई डोंट नो हम कहाँ जाएंगे। कब तक हम उस पास्ट में अपने पैर रख करके गड़ा करके ये सोचते रहेंगे कि हमें बदला लेना है, हमें रिवेंज लेना है, हमने हमारे साथ जो हुआ उसका हमें वो करना है। थिंग्स चेंज्ड, नई जनरेशन्स आई है, सब कुछ आया है, बहुत चीज़ें बदली हैं, हमें भी थोड़ा सा आगे सोचना चाहिए। वी नीड टू फाइंड दैट ह्यूमन साइड फ्रॉम विद इन, वो हमारे अंदर है कहीं। हर किसी के अंदर हैवान होता है यार, मेरे अंदर भी है, ठीक है, मेरे अंदर भी एक हैवान है। ये हाथ अभी यहाँ पे पूरा नीला पड़ा हुआ है ना, मे बी इट्स अ फ्रैक्चर, और मे बी शायद ये मांस पड़ा हुआ है। ये कोई हैवान ही था शायद से, जो जिसको मैंने गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, मैं पंच द वॉल सो टाइटली मल्टीपल टाइम्स एंड आई ऑलमोस्ट ब्रोक माई हैंड। सो हर किसी के अंदर वो हैवान होता है, बट इट्स अप टू अस, हमें चूज़ करना है कि हम अपने इंसान को बाहर निकालेंगे या हैवान को, कौन हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हावी होगा। अपने राक्षस को मत अपने ऊपर हावी होने दो। इस कम्युनिटी ने गलत किया है, उस कम्युनिटी ने कि कुछ लोगों ने गलत किया है, उस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया यार। प्लीज़ उसको उसके मज़हब से आगे उठ के देखो यार, उसकी इंसानियत को देखो, क्योंकि आज जिसको तुम मार रहे हो ना, कल को तुम्हें भी कोई मार देगा। ऐसे यही होता है, जब ये चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं, ऐसे दंगे हो जाते हैं, घर में कोई तलवार लेके घुस रहा होता है, कोई चला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। यही ह्यूमन साइड है। अब हमें डिसाइड करना है यार, क्या ह्यूमैनिटी है, क्या यही हमारी ह्यूमैनिटी है, यही इंसानियत हमारे अंदर बाकी रह गई है, या हम इसके आगे भी कुछ सोच सकते हैं। प्लीज़ यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख सकता है, अपने अंदर के इंसान को मत मरने दो यार। ये बहुत मुश्किल घड़ी है हम सबके लिए, इसके अंदर हम सबको एकजुट होकर के एक साथ आगे बढ़ना है। सब कुछ चीज़ें, इंसानियत सबसे ज़्यादा जिस समय ज़रूरी है हमें दिखानी है, हर किसी की मदद करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि खाली ये सिचुएशन नहीं, हर सिचुएशन में आगे याद रखो, मज़हब से बहुत ऊपर होती है इंसानियत। और अगर इस बात को नहीं मानते हो तो ये याद रख लो, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत सारी अच्छी लाइफ चीज़ें हैं जो मज़हब सिखाता है। मज़हब के रक्षक मत बनो, मज़हब अपनी रक्षा खुद कर लेगा। तुम बहुत छोटे हो यार, उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये सोचते हो। मतलब वो सब कुछ सारा खेल खेलता है, तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको नहीं पता क्या करना है। थिंक अबाउट इट मैन, द गॉड हु क्रिएटेड यू, यू डिड नॉट क्रिएट द गॉड, so don't be the creator or don't be the protector of the God. He knows how to protect himself or herself. So thank you. Just try to be more human. That's what I can want to say at the end. Jai Hind. Take care.